میلارڈ، اسے مقامی زبان میں نیل سر بھی کہا جاتا ہے۔ مالارڈ میلڈ ملٹ یا جنگلی بطخ اینس پلیٹرنکوس ایک بطخ ہے جو تمام معتدل اور ذیلی اشنکٹبندیی امریکہ، یوریشیا اور شمالی افریقہ میں پائی جاتی ہے۔ اسے نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، پرو، برازیل، یوراگوے، ارجنٹائن، چلی، کولمبیا، فاکلینڈ جزائر اور جنوبی افریقہ میں متعارف کرایا گیا ہے۔ یہ بطخ آبی پرندوں کے خاندان انیٹیڈی کے ذیلی خاندان انیٹنے سے تعلق رکھتی ہے۔ نر کے سر سبز ہوتے ہیں جبکہ مادہ میں بنیادی طور پر بھورے رنگ کے دھبے ہوتے ہیں۔ دونوں جنسوں کے پروں پر سفید بارڈر والے سیاہ یا ارغوانی جامنی یا نیلے پنکھوں کا ایک حصہ ہوتا ہے جسے اسپیکولم کہتے ہیں۔ نروں میں خاص طور پر نیلے رنگ کے پنکھ ہوتے ہیں۔ مالارڈ 50 سے 65 سینٹی میٹر 20 سے 26 انچ لمبا ہوتا ہے، جس میں سے جسم کی لمبائی تقریباً 2/3 ہوتی ہے۔ پروں کا پھیلاؤ 81 سے 98 سینٹی میٹر 32 سے 39 انچ اور بل 4.4 سے 6.1 سینٹی میٹر 1.7 سے 2.4 انچ لمبا ہے۔ یہ اکثر دیگر بطخوں کے مقابلے میں قدرے بھاری ہوتی ہے، جس کا وزن 0.7 سے 1.6 کلو گرام 1.5 - 3.5 ہوتا ہے۔ مالارڈز گیلے علاقوں میں رہتے ہیں، پانی کے پودے اور چھوٹے جانور کھاتے ہیں، اور سماجی جانور ہیں جو مختلف سائز کے گروہوں یا ریور میں جمع ہونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ مادہ متبادل دنوں میں 8 سے 13 کریمی سفید سے سبز رنگ کے بے داغ انڈے دیتی ہے۔ انکیوبیشن میں 27 سے 28 دن لگتے ہیں اور فلیجنگ میں 50 سے 60 دن لگتے ہیں۔ بطخ کے بچے پہلے سے تیار ہوتے ہیں اور ان کے بچے نکلتے ہی تیرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ بین الاقوامی یونین فار کنزرویشن آف نیچر (IUCN) کی طرف سے مالارڈ کو کم سے کم تشویش کی ایک انواع سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے آبی پرندوں کے برعکس مالارڈس کو کچھ خطوں میں ایک ناگوار انواع سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت موافق نوع ہے جو شہری علاقوں میں رہنے اور پھلنے پھولنے کے قابل ہے، جس نے ترقی سے پہلے آبی پرندوں کی زیادہ مقامی، حساس انواع کی حمایت کی ہوگی۔ غیر ہجرت کرنے والے مالارڈ زرخیز اولاد پیدا کر کے جینیاتی آلودگی کے ذریعے قریب سے متعلقہ پرجاتیوں کی مقامی جنگلی بطخوں کے ساتھ افزائش نسل کرتے ہیں۔ جنگلی بطخ کے جین کے تالابوں کی مختلف انواع کی مکمل ہائبرڈائزیشن کے نتیجے میں بہت سے مقامی آبی پرندوں کے ناپید ہو سکتے ہیں۔ یہ پرجاتی گھریلو بطخ کی زیادہ تر نسلوں کا اصل آباء و اجداد ہے، اور اس کا قدرتی طور پر تیار شدہ جنگلی جین پول جینیاتی طور پر گھریلو اور فیرل مالارڈ آبادیوں سے آلودہ ہوا ہے۔ مالارڈ پرندوں کی بہت سی پرجاتیوں میں سے ایک تھی جو اصل میں کارل لینیس کے 1758 کے 10ویں ایڈیشن میں بیان کی گئی تھی۔ اس نے اسے دو نامی نام دیے، اینس پلیٹرنکوس اور اینس بوسچاس۔ مؤخر الذکر کو عام طور پر 1906 تک ترجیح دی جاتی تھی جب اینار لونبرگ نے یہ قائم کیا کہ پلیٹرنکوس کو ترجیح حاصل ہے، جیسا کہ یہ متن کے پہلے صفحہ پر ظاہر ہوا ہے۔ سائنسی نام لاطینی اناس بطخ اور قدیم یونانی پلیٹرنکوس پلیٹرنکس براڈ بلڈ پلیٹیز براڈ اور رنکوس رنکہوس 5 سے آیا ہے۔ اینس پلیٹرنکوس کے جنون کو 2013 میں ترتیب دیا گیا تھا۔ میلارڈ کا نام اصل میں کسی بھی جنگلی ڈریک کا ہے، اور یہ ابھی کبھی کبھی اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ یہ پرانے فرانسیسی مالارٹ یا مالارٹ سے وائلڈ ڈیریک کے لیے اخذ کیا گیا تھا، حالانکہ اس کا حقیقی اخذ واضح نہیں ہے۔ اس کا تعلق یا کم از کم ایک پرانے ہائی جرمن مردانہ مناسب نام میڈل ہارٹ سے ہو سکتا ہے، متبادل انگریزی شکلوں ماؤڈیلٹ اور ماؤڈیلٹ میں پڑے سراغوں سے۔ میزل کو بھی ایک اثر کے طور پر تجویز کیا گیا ہے۔ مالارڈ کثرت سے اناس نسل میں اپنے قریبی رشتہ داروں جیسے امریکی کالی بطخ کے ساتھ، اور زیادہ دور سے تعلق رکھنے والی پرجاتیوں کے ساتھ جیسے شمالی پنٹیل کے ساتھ مختلف ہائبرڈز کا باعث بنتے ہیں جو مکمل طور پر زرخیز ہو سکتے ہیں۔ مالارڈ جنگل میں 40 سے زیادہ پرجاتیوں کے ساتھ ہائبرڈائز ہو چکا ہے، اور قید میں ایک اضافی 20 انواع مالارڈس اور ان کے گھریلو تحفظات مکمل طور پر غیر زرخیز ہیں۔ شمالی امریکہ میں بہت سے جنگلی مالارڈ آبادیوں میں گھریلو مالارڈ جنین کی خاصی مقدار ہوتی ہے۔ جینیاتی تجزیے سے معلوم ہوا ہے کہ کچھ مالارڈ اپنے انڈو پیسیفک رشتہ داروں کے قریب ہوتے ہیں، جبکہ دیگر ان کے امریکی رشتہ داروں سے متعلق ہوتے ہیں۔ ڈی لوب کی ترتیب کے لیے مائٹوکونڈریل جنین ڈیٹا بتاتا ہے کہ سائبیریا کے عمومی علاقے میں مالارڈز تیار ہو سکتے ہیں۔ مالارڈ کی ہڈیاں قدیم انسانوں کے کھانے کی باقیات اور یورپ میں جیواشم ہڈیوں کے دیگر ذخائر میں اچانک نمودار ہوتی ہیں، بغیر کسی مقامی پیشرو پرجاتی کے لیے کوئی اچھا امیدوار۔
प्लाइस्टोसीन के दौरान कम अज़ कम यूरोपीय और मगरबी एशियाई आबादियों पर मुश्तमिल बड़ी बर्फानी पियालियोसचास का नाम एनस्प्लेटरिंकोस पलियोबस्कस रखा गया है। मालार्ड्स को उनके माइटोकॉन्ड्रियल जेनिन में शुमाली अमेरिका और यूरेशियन आबादी के दरमियान फ़र्क किया जाता है, लेकिन जौहरी जनून जीनियाती साख्त की नुमायाँ कमी को ज़ाहिर करता है। अमरीकी मालार्ड रिश्तेदारों की मखसूस हापलूटापस और मशरक़ी सपाट ब्लड बतखें बहीरा बैरन के इर्द गिर्द मालार्ड्स में पाई जा सकती हैं। अल्यूटीन जज़ाइर में मालार्ड्स की आबादी है जो एक जली नस्ल बनने की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि दीगर आबादियों के साथ जनीन का बहाव बहुत महदूद है। नीज़ पुरानी दुनिया के मालार्ड और न्यू वर्ल्ड मालार्ड के दरमियान मॉर्फोलॉजिकल फ़र्क की कमी इस हद तक ज़ाहिर करती है कि इनके दरमियान जनून किस हद तक मुश्तरक है, जैसे कि चीनी सपाट ब्लड बतख जैसे परिंदे ओल्ड वर्ल्ड मालार्ड से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, और परिंदे जैसा कि हवाई बतख न्यू वर्ल्ड मालार्ड से बहुत मिलती जुलती है। मालार्ड का साइज़ तिब्बी लिहाज से मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर ग्रीनलैंड के परिंदे अगरचे बड़े होते हैं, छोटे बल, पीलर पलमीज और ज़्यादा साउथ परिंदों के मुकाबले में स्टाकी जिस्म रखते हैं और बाज़ औक़ात उनकी दर्जा बंदी एक लग्ज़री नस्ल के तौर पर की जाती है। ग्रीनलैंड मालार्ड मालार्ड शुमाली और जनूबी निस्फ़ कुरा में वसी पैमाने पर तकसीम किया जाता है। शुमाली अमरीका में इसका दायरा जनूबी और वस्ती अलास्का से मैक्सिको, हवाई जज़ाइर पैलार्टिक के इस बार आइसलैंड सेवर जनूबी ग्रीनलैंड और मराकेश, शुमाली अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। मगरिब में स्कैंडिनेविया और बरतानिया शुमाल में, और साइबेरिया, जापान और जनूबी कोरिया। मशरक़ में भी इसका दायरा जनूब मशरक़ी और जनूब मगरबी ऑस्ट्रेलिया और जनूबी निस्फ़ कुरा में न्यूज़ीलैंड तक है, और सर्दियाँ दूर जनूब में। मिसाल के तौर पर शुमाली अमरीका में ये जनूबी अमरीका और शुमाली मैक्सिको में सर्दियों में होता है, लेकिन सितंबर और मई के दरमियान बाकायदगी से वस्ती अमरीका और कैरिबियन में भटकता है। बाद में टेरिवर नामी एक गरीक ने 2018 में मीडिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई जब वो जजीरे न्यूए पर आया, जो मालार्ड्स के लिए एक गैर मामूली मकाम है। मालार्ड आर्कटिक टंडरा से लेकर जलीय उष्णकटिबंधीय इलाकों तक वसी पैमाने पर रहाइश गाहों और आबवाओ हवा में रहता है। ये ताज़ा और खारे पानी के दोनों गीले इलाकों में पाया जाता है, बशमूल पार्कस, छोटे तालाब, दरियाओं, झीलों और मोहनों के साथ साथ साहिली पिटी के अंदर अथले दाखिली रास्ते और खुले समंदर में। 0.9 मीटर 3.0 फीट से कम पानी की गहराई को तरजीह दी जाती है। परिंदे चंद मीटर से ज़्यादा गहराई वाले इलाकों से गुरेज करते हैं। वो आबी पौधों के साथ पानी के जिस्मों की तरफ राग़िब होते हैं। मालार्ड सब्ज़ी खोर है और खाने के इंतखाब में बहुत लचकदार है। इसकी खुराक कई अवामिल की बुनियाद पर मुख्तलिफ हो सकती है, बशमूल अफजाइश नस्ल का मरहला, दस्तियाब खुराक में कलील मुद्दती तगीरात, ग़िज़ाई अजज़ा की दस्तियाबी और इंटरास्पेसिफिक मुकाबला। ऐसा लगता है कि मालार्ड की ज़्यादातर खुराक गैस्ट्रोपोड्स कीड़ों पर मुश्तमिल होती है, बशमूल बरंग, मक्खियाँ, लेपिडोप्टेरिन, ड्रैगन फ्लाइज और कैडी फ्लाइज, बैजों की बहुत सी कस्में और पौधों के मादे और जड़ें और टबर। अफजाइश के मौसम के दौरान नर परिंदों ने 37.6% हीवानी मादे और 62.4% पौधों के मादे को खाया, ख़ास तौर पर घास एकिनोक्लोअक्रस, गली और बग़ैर बिछाने वाली मादा ने 37.0% हीवानी मादा और 63.0% पौधों का मादा खाया, जबकि बिछाने वाली मादा 71.9% खाती हैं फीसद हीवानी मादा और सिर्फ 28.1% पौधों का मादा। पौधे आमतौर पर परिंदों की खुराक का बड़ा हिस्सा बनाते हैं, ख़ास तौर पर ख़ज़ां की हिजरत और सर्दियों में। मालार्ड आमतौर पर पौधों की खुराक या चरने के लिए चुगते हुए खाना खिलाता है। इसके मेंढक खाने की इत्तलात भी हैं। ताहम 2017 में रोमानिया में मालार्ड्स के एक झुंड को छोटे हिजरत करने वाले परिंदों का शिकार करते हुए देखा गया, जिनमें ग्रे वैगटील और ब्लैक रेड स्टार्ट्स शामिल हैं। ये पहला दस्तावेजी मौका था जब इन्हें बड़े फ़कारी जानवरों पर हमला करते और खाते हुए देखा गया था। ये आमतौर पर दरिया के किनारे पर घोंसला बनाता है, लेकिन हमेशा पानी के करीब नहीं। ये अफजाइश के मौसम के बाहर बहुत ज़्यादा हम आहंग होता है और बड़े रिवर बनाता है, जिसे सोर्डस के नाम से जाना जाता है। मालार्ड्स आमतौर पर जोड़े बनाते हैं, शुमाली निस्फ़ कुरा में अक्टूबर और नवंबर में, जब तक कि मादा घोंसले के मौसम के आगाज़ में अंडे नहीं देती, जो कि बहार के आगाज़ के आसपास होता है। उस वक्त उसे नर छोड़ देता है जो दूसरे नरों के साथ मिलकर ढलने की मुद्दत का इंतज़ार करता है, जो जून में शुरू होता है, शुमाली निस्फ़ कुरा में। ताहम उससे पहले के मुख्तसर वक्त के दौरान
नर अब भी जिनसी तौर पर ताकतवर हैं और इनमें से कुछ या तो साइर मुतबादिल कलच के लिए एसिटिनेट बाई पर रहते हैं। इन मादाओं के लिए जिन्होंने अपना पिछला कलच खो दिया या छोड़ दिया है, अलग थलग या गैर मुंसलिक होना, चाहे उनकी नस्ल कुछ भी हो और उनके पास बतख के बच्चे हों या ना हों। घोंसला बनाने की जगहें आमतौर पर ज़मीन पर होती हैं, पौधों में छपी होती हैं, जहां मादा के धब्बे वाले पलमीज मौसर छलावरन के तौर पर काम करते हैं। लेकिन मादा मालार्ड्स को दरख्तों, बूथ हाउस, छतों के बागात और बालकोनियों में खोखलियों में घोंसला बनाने के लिए भी जाना जाता है, जिसके नतीजे में बाज़ औक़ात बच्चे भी निकल जाते हैं। औलाद को पानी के लिए अपने वालिदैन की पैरवी करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अंडे के कलच नंबर 8 से 13 करीमी सफ़ेद से सब्ज़ रंग के अंडे धब्बों से पाक होते हैं। उनकी लंबाई तकरीबन 58 मिलीमीटर 2.3 इंच और चौड़ाई 32 मिलीमीटर 1.3 इंच है। अंडे मुतबादिल दिनों पर डाले जाते हैं और इंक्यूबेशन उस वक्त शुरू होती है जब कलच तकरीबन मुकम्मल हो जाता है। इंक्यूबेशन में 27 से 28 दिन लगते हैं और फ्लेडिंग में 50 से 60 दिन लगते हैं। बतख के बच्चे कबल अज़ वक्त होते हैं और उनके बच्चे निकलते ही तैरने की पूरी सलाहियत रखते हैं। ताहम फाली इम्परंटिंग इन्हें फितरी तौर पर मां के करीब रहने पर मजबूर करती है, न सिर्फ गर्मी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बल्कि अपने मसकन के बारे में जानने और याद रखने के साथ साथ खाने के लिए चारा कैसे और कहाँ से लाना है। अगरचे गोद लेने के बारे में जाना जाता है, मादा मालार्ड आमतौर पर अपने बच्चों के करीब आवारा बतख के बच्चों को बर्दाश्त नहीं करती हैं और किसी भी नावाकिफ नौजवान पर हमला करके इन्हें भगा देती हैं, बाज़ औक़ात इन्हें मारने तक भी जाती हैं। जब बतख के बच्चे परवाज़ के काबिल नौजवान बन जाते हैं तो वो अपने रिवायती नकल मकानी के रास्तों के बारे में सीखते और याद रखते हैं, जब तक कि वो कैद में पैदा ना हों और परवरिश ना पाई हों। न्यूजीलैंड में, जहां मालार्ड्स को कुदरती तौर पर बनाया जाता है, घोंसले बनाने का मौसम तवील पाया गया है। अंडे और कलच बड़े होते हैं और घोंसला की बका आमतौर पर उनकी आबाई हदूद में मालार्ड्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है। ऐसी सूरतों में जहां घोंसला या बच्चा नाकाम हो जाता है, कुछ मालार्ड दूसरी बार एक दूसरे कलच को बढ़ाने की कोशिश में मिल सकते हैं, आमतौर पर मौसम गर्मा के शुरू से वस्त तक। इसके अलावा मालार्ड्स कभी कभार मौसम ख़ज़ां के दौरान गैर मौसमी गर्म मौसम की सूरत में अफज़ाइश कर सकते हैं। देर से कलच की ऐसी ही एक मिसाल नवंबर 2011 में पेश आई, जिसमें लंदन व्हीटलैंड सेंटर में एक खातून ने कामयाबी के साथ 11 बतखों के कलच को बचाया और उठाया। अफज़ाइश के मौसम के दौरान नर और मादा दोनों जारिहाना हो सकते हैं, अपने हरीफों को अपने या अपने साथी पर चार्ज करके उनसे दूर कर देते हैं। नर मादाओं से ज़्यादा लड़ते हैं और अपने हरीफ के सीने पर बार बार चोंच मारकर एक दूसरे पर हमला करते हैं, पंखों को फाड़ देते हैं और यहाँ तक कि शाज़ व नादिर मौक़े पर जल्द भी। मादा मालार्ड्स को उकसाने वाले डिस्प्ले करने के लिए भी जाना जाता है, जो रेवर में मौजूद दीगर बतखों को लड़ाई शुरू करने की तरगीब देते हैं। ये मुमकिन है कि ये रवैया मादाओं को मुमकिना शिराकत दारों की ताकत का अंदाज़ा लगाने की इजाज़त देता हो। वो डरीक जो दूसरों के मिलन पार्टनर्स के साथ जोड़ बनाने के बाद छोड़ दिए जाते हैं, बाज़ औक़ात अलग थलग मादा बतख को निशाना बनाते हैं, यहाँ तक कि एक मुख्तलिफ नस्ल में से एक और इसका पीछा करते हुए इसका पीछा करते हैं जब तक कि वो कमज़ोर ना हो जाए, जिस मकाम पर नर मोड़ लेते हैं। मादा के साथ हमबस्तरी करना लेबरेट 1961 इस रवैये को रेप फ्लाइट की कोशिश कहते हैं और असटीनले करम और के सीमंस 1977 असमत दरी के इरादे की परवाज़ों की बात करते हैं। नर मालार्ड भी कभी कभार एक मुख्तलिफ नौ की दूसरी नर बतखों का पीछा करते हैं और यहाँ तक कि एक दूसरे का भी उसी तरह पीछा करते हैं। हम जिन्स परस्त नेक्रोफेली के एक दस्तावेजी केस में एक नर मालार्ड ने दूसरे नर के साथ हमबस्तरी की, जिसका पीछा किया गया नर शीशे की खिड़की में उड़ते हुए मर गया। इस मकाले को 2003 में इंस्पेक्टर जनरल नोबल इनाम से नवाजा गया था। मालार्ड्स मौका परस्ताना तौर पर ब्रॉड परजीवियों के जरिया निशाना बनते हैं, कभी कभार उनके घोंसलों में सुर्ख बालों, सुर्ख बतखों, कम खजलियों, गेडवालस, नारदरन शाहुलर्स, नारदरन पंटेलस, दारचीनी टेलर, कामन गोल्डनी और दीगर मलार्डस के जरिया अंडे देते हैं। ये अंडे आमतौर पर उस वक्त कबूल किए जाते हैं जब वो मेज़बान मालार्ड के अंडों से मुशाबहत रखते हैं।